हेलो किड्स, आज हम अपना चैप्टर 3 प्रेस फॉर गुड डीड्स पढ़ेंगे। ओके, प्रेस मतलब जो प्रशंसा होती है अच्छे कामों के लिए, जो हमारी तारीफ़ होती है, प्रशंसा होती है, वही लेसन आज हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नवीन वॉज अ मेसन, ही अर्न्स ₹400 a day from his work. Deepak was his only son. He was 5 years old. So far, his parents did not send him to any school because of their low income. So he spent his time wandering here and there. One day, Deepak's mother, Sarika, told her husband, Deepak has become 5-year-old. So why shouldn't we enroll him in school? Naveen replied, You are right, Sarika, but I am not able to decide upon in which school we can send him. My income is very low. How would I pay the fees of the school every month? But anyhow, we have to enroll him in a school, said Sarika. They went to a private school and filled up an application form for their son's admission. But their application form was rejected on the ground of his low income. In order to maximize her family income, Sarika also started working in a toy shop. They again went to the same school, filled up an application form, and this time their application form was accepted. Deepak was called for an interview. He cleared the interview and finally enrolled in the school. Deepak went to school. He did good at every subject, but he had a few friends in the class. In fact, all other students except Deepak belonged to a well-off family. Gradually, all the students started to know him at school, for he was good not only at studies but also at other activities. All teachers applauded him for his excellent performance. Every student was happy of his outstanding performance. But Abhishek, Vishnu and Udit were jealous of his excellent performance. So they decided to vilify him. One day, when everyone went outside in lunch hour, Abhishek, Vishnu and Udit took Manish's English book out of his bag and put it into Deepak's bag. Now the class started. Teacher told everyone to take out their English book. When Manish did not find his book in his bag, he complained the teacher about it. The teacher asked the class monitor to look for the book in everyone's bag. Finally, the book was found in Deepak's bag. Deepak was taken aback by seeing the book in his bag. He could not understand how it came into his bag. Deepak felt ashamed. The teacher began to scold him, but soon Pankaj came into the class. Pankaj saw the boys doing the loathsome act. He told the teacher everything. Now Abhishek, Vishnu and Udit were rebuked by the teacher and they were felt ashamed. Everybody passed humiliating remarks on them. They felt contrite about their repulsive act. Deepak's parents came to know that their son was intelligent and honest student. They felt pride of their son. अब चलिए देखते हैं कि कुछ मीनिंग्स आपको दी गई हैं, उसे भी आप एक बार रीड कर लेते हैं। वेल ऑफ रिच, अपलॉड टू प्रेस। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? अमीर, है ना। अपलॉड का मतलब क्या होता है? टू प्रेस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बार बार कि प्लीज़ गिव अपलॉज फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब आप उन्हें प्रेस कीजिए, ताली बजाकर प्रेस कीजिए। टेकन अबैक मतलब
टू बी सरप्राइज, बहुत ही अचंभित होना। लोथसम मतलब डिस्गस्टिंग, मतलब जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं उसी को बोलते हैं डिस्गस्टिंग। कॉन्ट्राइट, टू फील सॉरी फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, किसी ऐसे काम के लिए शर्मिंदा होना जो अच्छा ना हो, ठीक है। रिपल्सिव, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब कुछ लोग वो बोलते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं, वही रिपल्सिव होता है। ओके, चलिए देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या होता है लेसन का। नवीन कौन थे, एक मज़दूर थे, ओके, और वो उनकी आमदनी कितनी थी, दिन के 400 रुपये। दीपक उनका एकमात्र बेटा था, वह 5 साल का था। वह अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उसे स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो है बहुत ही कम आमदनी होती थी। बिना पैसे के बच्चे को स्कूल भेजना उनके लिए संभव नहीं था। तो दीपक इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन दीपक की मम्मी सारिका ने बोला नवीन से कि दीपक अब 5 साल का हो गया है, क्यों ना हम उसे किसी स्कूल में डाल दें। तो नवीन ने क्या कहा सारिका से, हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कहाँ भेजूँ, क्योंकि मेरी इनकम बहुत ही कम है और मैं उसका फ़ीस जो है, जो मंथली फ़ीस रहेगा, उसे कैसे पटाऊँगा। लेकिन सारिका ने क्या बोला कि हमें कुछ ना कुछ करके बच्चे को स्कूल में तो डालना पड़ेगा। सारिका ने एक बार एक प्राइवेट स्कूल में एप्लीकेशन भरा, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनकी इनकम क्या थी, बहुत ही लो थी। अब सारिका ने अपने इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया, एक टॉय शॉप में काम कर लिया, जिससे वो दीपक को स्कूल में भेज सके। फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसी स्कूल में और दीपक को वहाँ पे एडमिशन मिल गया। इंटरव्यू के बाद दीपक को वहाँ पे एडमिशन मिल गया। दीपक जो था सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा था, है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और वह अपने क्लास में कुछ ही फ्रेंड्स बनाया था, है ना। सभी दीपक के अलावा जो जितने स्टूडेंट्स उस क्लास में पढ़ते थे बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, सिवाय दीपक के। सभी दीपक को अब किस बात से जानने लगे, उसकी स्टडीज़ की वजह से और अदर एक्टिविटीज़ में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो वह जीतता था, मतलब वो हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करता था। वो बहुत ही होशियार बच्चा था। टीचर्स भी उसे उसकी परफॉर्मेंस की वजह से पसंद करने लगे। हर स्टूडेंट उसको पसंद करता था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। और लेकिन कुछ बच्चे जैसे अभिषेक, विष्णु और उदित उसके परफॉर्मेंस से जलते थे, ईर्ष्या करते थे और सोच रहे थे कि उसे कैसे नीचा दिखाया जाए। एक दिन अभिषेक, विष्णु और उदित ने क्या किया, मनीष की बुक, इंग्लिश बुक निकाली और उसे दीपक के बैग में डाल दिया। जब क्लास स्टार्ट हुआ और मनीष को उसकी बुक नहीं मिली, तो फिर मनीष ने टीचर से कंप्लेन की, है ना, कि मेरी बुक नहीं मिल रही है मैडम। तो मैडम ने क्या बोला, क्लास की जो मॉनिटर थे उसको बोला कि आप सारे बच्चों की बैग्स चेक करो। और बैग चेक करने के बाद क्या पाया गया कि बुक तो दीपक के पास था। दीपक बहुत ही आश्चर्य हो गया, बहुत ही सरप्राइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम किया नहीं था, लेकिन उसके पास कैसे आ गया वह समझ नहीं पा रहा था। दीपक की जो टीचर थी उसे डांटने लगी और दीपक, जिसकी वजह से दीपक ने कोई काम वैसा किया नहीं था, लेकिन तो भी उसे शर्म आने लगा कि ऐसे चीज़ों में वो कैसे फंस गया। उसी समय पंकज नाम का एक स्टूडेंट क्लास में आया। पंकज ने देखा था कि अभिषेक, विष्णु और उदित ने कौन सा गलत काम किया था दीपक के साथ। उसने सारी चीज़ें अपनी टीचर को बता दी। टीचर ने अभिषेक, विष्णु और उदित को डांटा और उन तीनों को बहुत ही शर्म महसूस हुई। सभी बच्चे उनके ऊपर में बुरे बुरे कमेंट्स करने लगे। वह दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए अपने इस गलत काम के लिए।
जब दीपक के पेरेंट्स को पता चला यह कि दीपक बहुत ही इंटेलिजेंट और ईमानदार लड़का है, तो उनको क्या हुआ, उस पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ, है ना। इस लेसन से क्या समझ में आता है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो सभी आपको पसंद करते हैं, है ना। आपकी पढ़ाई और आपके परफॉर्मेंस से, आपके कपड़े से, आपके ड्रेस से, या आप कितने रिच हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसी से आप जाने जाते हो। ओके, थैंक यू।